को जो प्रभु यीशु मसीह के लिए जगह रास्ता तैयार करने के लिए आया था। We saw the baptism of the servant, the temptation of the servant, and the mission of the servant. और हम लोगों ने दास का परीक्षा देखी, दास का जो हमने मिशन को देखा था। So now today I'll just share my screen with you so that you can see what is that we are going to see today. और आज मैं आपको एक स्क्रीन आपको मैं दिखाता हूं और उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। So here we see in part 2 the opposition to the servant. और हम यहाँ पर देखते हैं दास का विरोध। So this part is divided into 4 parts, but I'll be focusing on the opposition part because Brother Johnny is already covering 2 and 3. और इस जो दास का विरोध है इसमें 4 भागों को हम देखते हैं। मैं केवल जो दास का विरोध है उसी पे अपना ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा क्योंकि ब्रदर जॉनी भी इस भाग को ले रहे हैं। So our concentration will be on chapters 2 and 3 this morning. और इस सुबह में आज हमारा जो ध्यान केंद्रित रहेगा, हमारा अध्ययन रहेगा वो मरकुस 2 पर विशेष कर रहेगा। So we see actually what is happening is Jesus is ministering and there is some interest from the people, but there is also opposition which is started to grow. और हम आज क्या देखने जा रहे हैं कि ये जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा के विषय में और वहां पर लोगों का जो हम प्रतिक्रिया देखते हैं उनका विरोध भी देखते हैं। We know in politics there will be always 2 parties. One will be ruling, other will be opposing. और जो हम लोग राज्यों में भी देख सकते हैं 2 तरह के दल रहते हैं, एक सत्ता में रहता है, एक सत्ता का विरोध करने के लिए रहता है। So where the king is, there is the court. और जहां पर राजा रहता है वहां पर अदालत भी होती है। So that means it is something like where the queen bee is, all the other bees will gather together. Bee, madhumakki. और जहां पर मधुमक्खी रहती है, जहां शहद रहता है वो सभी एकत्रित हो जाती हैं। And we see that many of the people came only for the curing of their diseases, but some came because of their curiosity to see him. और यहाँ पर हम बहुत अच्छी बात देखते हैं, कुछ लोग तो चंगाई के लिए आए और कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह की जानकारी लेने के लिए आए। So people came for cure and curiosity, but Jesus Christ, when he had them together, he preached to them. और यहाँ पर हम लोग एक बहुत अच्छी बात देखते हैं, लोग चंगाई के लिए और यीशु मसीह को देखने के लिए आते हैं, लेकिन यीशु मसीह उन्हें प्रचार करने लगते हैं। So let us turn our attention to Mark chapter 2. आइए हम निकालते हैं मरकुस 2 अध्याय। So let us, you brother, please read verse 1. आइए हम पढ़ते हैं पहला वचन। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। So here we see that here is Christ who is now in the house. और हम यहाँ पर देखते हैं जो कफरनहूम में आए हैं वो घर में हैं। And it is written here, it was noised that Christ was in the house. और यहाँ पर हम एक आनंद देख सकते हैं कि मसीह घर में है। And we see that familiar word straight away in verse 2. और एक अच्छी बात हम दूसरे वचन में देख सकते हैं। So here was a person in pursuit of his mission. और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो एक उद्देश्य के साथ आए हैं वो अपने उद्देश्य में लगे हुए हैं। And there was no room in the place, so that there was so much of
crowd which gathered to listen to him. और हम देख सकते हैं यहाँ पर जिस घर में वो रुके थे वो पूरा खचाखच भरा हुआ था और लोगों के लिए जगह नहीं थी बैठने के लिए। But you see, in the second part of verse 2, he did what he loved to do. He preached to them. और हम दूसरे वचन में देखते हैं जिसे वो प्रेम करते थे जिस बात को वह उन्हें वचन सुना रहा था। And when he is preaching, people are bringing their sick ones to his presence so that he may heal the sick. और कुछ लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि वो उनको चंगाई दे सकें। Sometimes I marvel at the multitasking ability of God. और कुछ समय मैं परमेश्वर की महत्वता को देख के आश्चर्यचकित होता हूँ, उन्होंने जो जिस प्रकार के कार्य सौंपे हैं। In our houses, our sisters can always multitask. They can look after the milk boiling, they can look after the children, they can look after the servant, and they can also wash clothes at the same time. Multitaskers. और हम अपने घरों में भी ऐसा देखते हैं, बहुत लोगों के पास अच्छे अच्छे टैलेंट हैं। जिस प्रकार लेडीज को हम देखते हैं वो घर में कार्य करती हैं, बच्चों को देखती हैं, और हमारे घर में जो सर्वेंट लोग काम करते हैं वो भी एक नहीं दो दो तीन तीन कामों को करते हैं। But our brothers are not so good in multitasking like the sisters. लेकिन हमारे जो भाई लोग हैं वो हमारी बहनों की तरह ज्यादा कार्य करने वाले नहीं हैं। Here you see Jesus preaching, and suddenly there is some noise, thuk, 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 sound coming from the roof. और जो यहाँ पर यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं और ऊपर छत से आवाज आती है, खटखट की कुछ हो रहा है। Oh, suddenly the master's attention was distracted by the people trying to remove part of the roof for doing something which nobody expected. और देखिए गुरु यीशु मसीह ऊपर की तरफ देखते हैं और लोग वो छत को हटा रहे हैं, इस प्रकार से कोई भी सोच नहीं सकता है। And when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. That's what we read in verse 4. और हम देखते हैं उन्होंने छत को हटा दिया ऊपर से, उसमें छेद करके, और एक झूले के मारे को लटका रहे हैं। Just imagine when you are gathered together for a meeting in your assembly hall, it is made of tiles, and somebody opens the roof. What will be your reaction? आप ऐसा विचार कीजिए, आपका ऐसे मीटिंग चल रहा हो और कोई आपकी छत को ऊपर से हटाए तो आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी? The elders will go immediately and say, "Hey, bhai, what are you doing? Don't you know that this is assembly meeting time and we are preaching, and what nonsense you are doing? Get down, get down." और हमारे जो चर्च के अगुआ हैं वो जाके कहेंगे, अरे भाई क्या कर रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं है प्रीचिंग चल रहा है, मीटिंग चल रही है, नीचे आओ। But at this point of time, the elders couldn't get out of the house because so much of crowd was there. और हम देख सकते हैं बहुत अच्छी बात कि एल्डर जो अगुआ लोग हैं वो उठ नहीं पाए क्योंकि घर भीड़ से बहुत खचाखच भरा हुआ था। The doors were blocked and it was like a Bombay local train. और जो द्वार है वो बंद था, एक बांस की तरह। Yeah, it was like a Mumbai local train. और ये बम्बई में जो लोकल ट्रेनें होती हैं, रेलें होती हैं, उनकी तरह भरा हुआ था। So you should come to Bombay and you will experience what it is. और आप बम्बई में आइए, आपका निमंत्रण है, और आप देख सकते हैं किस प्रकार वहां पर रेलें भरती हैं। Nobody could go out, nobody could come in. और कोई भी जा नहीं सकता, कोई भी आ नहीं सकता। And see what Jesus saw. और यही यीशु मसीह वहां पर देख रहे हैं। And he did not see the roof being broken. He did not see the person coming down like a bucket in a well. But what did he see? और यीशु मसीह ने उन्हें छत को हटाते हुए नहीं देखा, ऊपर से जिस आदमी को वो लटका रहे थे वो प्रभु यीशु मसीह ने नहीं देखा, तो फिर क्या देखा? See verse 5. पढ़ें सर।
see, please read verse 5. यीशु ने 5 वचन को पढ़ें। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। So I do not know how much time elapsed from the time the bed came down, and was kept in front of him. But Jesus saw something else. He saw their faith. और यीशु हम नहीं जानते कि उस व्यक्ति को वहां से आने में कितना टाइम लगा, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखा। So when Jesus healed the centurion's centurion's servant, he saw the centurion's faith, he saw his faith. और हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक सिपाही के जो दास को चंगा किया। He saw the centurion's faith, he saw his faith. और यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा। But here he is seeing the faith of those people who brought the person. और यहाँ पर हम लोग यीशु मसीह ने उन 4 व्यक्तियों को देखा जो उसको लेकर आए थे। So maybe it was his neighbors, or maybe it was his relations who brought this poor man on top of the roof and put him down. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को कितना देखा कि उन्होंने छत को हटाकर उसे यीशु मसीह के सामने लटका दिया। They thought that if we take this person to Christ, we need not carry him anymore. So let us bring him. They uncovered the roof where he was. उन्होंने सोचा कि हम इसे यीशु मसीह के पास ले चलते हैं, फिर हमें इसे बार-बार कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। So they took him to where Jesus was. और वो लोग वहां उसको ले गए जहां यीशु मसीह थे। So it spoke of their faith and their fervency to address this problem to Jesus Christ. और वो लोग वो झोले के मारे को प्रभु यीशु मसीह को ले गए ताकि वो उसकी परेशानी को यीशु मसीह को बता सकें। So they were in so much of desire and earnestness that they would not go away nor let Christ go without a blessing to this person. हम यहाँ पर देख सकते हैं लोगों के विश्वास को। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक यीशु मसीह नहीं जाएंगे हम लोग भी नहीं जाएंगे और हम आशीष लेके ही जाएंगे। Can we turn to the book of Genesis chapter 32 and 26? क्या हम लोग पढ़ सकते हैं उत्पत्ति उसका 32 अध्याय और 26वां उसका 26 वचन। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। Oh, what a statement from Jacob. कितनी सुंदर बात हम यहाँ पर याकूब के द्वारा सुनते हैं। He is saying that I warned you. हम यहाँ पर देखते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। Let me go, says one person, and the other person says, I will not let thee go. एक व्यक्ति, हम 2 व्यक्तियों के यहाँ पे देख सकते हैं। एक कहता है मुझे जाने दे, दूसरा क्या उसको जाने नहीं देता है। I will let you go after you bless me. और वो कहते हैं मैं तुम्हें जाने दूंगा यदि तुम मुझे आशीष दो। So these people brought this person who was a paralytic man in faith, and they had this great desire that God's blessing should be on this person so that he will never be called a paralytic from this day on. इन 4 लोगों के विश्वास को हम देख सकते हैं और उनका विश्वास इतना दृढ़ है, वो यीशु मसीह के पास जाते हैं ताकि वो इन्हें चंगाई दे दें, ताकि आगे को इन्हें कोई लंगड़ा या झोले का मारा ना कहे। And we see that sin is the procuring cause of all our pains and sicknesses. और हम जानते हैं पाप वह चीज है जो सभी दुख का कारण है। And in the
in the early days, people used to have problems of their sickness and die within no time. और हम देखते हैं पिछले जमाने में लोग बीमार होते थे और कुछ ही क्षणों में मर जाते थे। Even today, even though you have the best doctor and the best medicines, if somebody is going to live, I don't think anybody among us is going to live for 150 years or 900 years like the early people in the Bible. और हम आज के दौर में देखते हैं बहुत अच्छे वैद्य लोग हैं, डॉक्टर हैं, अच्छी फैसिलिटी है, फिर भी मैं विश्वास नहीं करता कोई 100 साल और उससे ऊपर भी जिएगा। 70 or 80 is the yardstick which we have in Psalms. और हमारे जो आयु की सीमा है वो 70 और 80 है, वो हम लोग भजन संहिता में पढ़ते हैं। So when the pardon of sin was pronounced by this person, the Lord Jesus Christ, there were so many people who were gathered there who had come to hear what he is saying and catch him by his words. और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, तो बहुत सारे लोग जो ज्ञानी थे वो सुनने लगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। Let's read verse 6 and 7, please, brother. आप मरकुस 2 का 6 और 7 पढ़िए। अब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने मन में विचार करने लगे कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। So we see some people were sitting there who are important men also. और हम यहाँ पर देखते हैं वहां बहुत विशेष लोग बैठे हैं। And there were the scribes of that times. और उस समय के वो लोग शास्त्री हुआ करते थे। So we see these people who were sitting there, they were reasoning in their hearts. और हम देखते हैं वो जो लोग सुन रहे थे वो अपने हृदय में सोचने लगे कि ये क्या कह रहे हैं। So when they were the expositors of the law and their doctrine was true, they thought it was blasphemy for any creature to give pardon for sin, as it was the prerogative of God to pardon sin. और वो लोग विचार जानते हैं, पूरे शास्त्र के ज्ञानी हैं और उनके शास्त्र में अच्छा लिखा है, फिर भी वो विचार कर रहे हैं ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है बोल के कि पाप क्षमा हुए। Let us turn to Isaiah chapter 43 and verse 25. आइए हम पढ़ते हैं यशायाह 48 का 25 वचन। यशायाह 48 25 वचन। सर 25 नहीं, इसमें 48 का 25 नहीं, नहीं 43 25 brother. मैं वही हूँ 48 का 25 जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। So this is God's prerogative. और ये परमेश्वर का वादा है। He says very clearly that I am he that blots out your transgressions or your sins. और हम यहाँ पर पढ़ते हैं परमेश्वर कहते हैं मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण नहीं कर दूंगा। And he says that I will never remember your sins. Praise God. हम परमेश्वर की महिमा हो और वहां यहाँ पर कहते हैं मैं तेरे पापों को कभी स्मरण नहीं करूंगा। So you see these teachers who are sitting there, their application of the knowledge of God and the doctrine was wrong. और हम देखते हैं यहाँ पर जो शास्त्री हैं उनको मालूम है और फिर भी उनके प्रति ये जो सिद्धांत है वो गलत हो रहा है। And when they saw something what Jesus was doing and what Jesus was talking, they had their enmity inside and they started reasoning in their hearts.
और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हो, तो ये शास्त्री लोग अपने मन में विचार करके विचार करने लगे कि ये तो सही नहीं है। None can forgive sins, and only God can forgive your sins. कोई भी पापों को क्षमा नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर पापों को क्षमा कर सकते हैं। But their wrong understanding was that that therefore Jesus Christ cannot forgive their sins. और यहाँ पर उनकी गलत सोच को हम देख सकते हैं, वो विचार करते हैं यीशु मसीह पापों को क्षमा नहीं कर सकते। They did not believe that here was a person who had the divine power not only to heal sickness but also to forgive sins. They had not read Isaiah 43:25. और हम लोग देखते हैं वो लोग ऐसा विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह जो रोगों को चंगा भी कर सकते हैं और पापों को क्षमा भी कर सकते हैं, जो यशायाह में हमने पढ़ा। So he knew what was in man. और वो ये जानते थे कि इस व्यक्ति में क्या कमी है। And if you turn to Revelation chapter 2 and verse 23, we read that we can read that verse. और हम लोग प्रकाशित वाक्य 2:27 भी पढ़ सकते हैं। 23, brother. 23 वचन हम लोग पढ़ेंगे। और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा और सब कलीसियां जान लेंगी कि हृदय और मन को परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। Here is a person who says, I am he. What does he do? I am he which searcheth the reins and hearts. That is what he's saying. और हम देखते हैं कि यहाँ पर वह व्यक्ति है जो मन को परखने वाला है। So this magnifies the grace of Christ, which in pardoning sin, what is he doing? That he knew men's thoughts and therefore knows more than anybody else. और यहाँ पर हम देखते हैं यह परमेश्वर के अनुग्रह को महिमा में करता है, जो लोगों को परखता है जो कोई नहीं परख सकता मनुष्य। He knows the intensity of the disease of sin, whether it's first stage, second stage, third stage, or first stage of cancer. और प्रभु यीशु मसीह जो लोगों को परखते हैं वो जानते हैं कि ये किस स्थिति का पाप है। So he proves his power to forgive sin by demonstrating his power to cure the man sick of the palsy. और हम यीशु मसीह को देखते हैं वो अपने सामर्थ्य को प्रदर्शित करते हैं इस झोले के मारे को चंगा करके और उसके पापों को क्षमा करके। And he says to this person, thou that art sick of palsy, arise. And he said, go home or do something else. और वो कहते हैं शास्त्रियों से कि ये कहना उचित है कि अपने घर जा और तेरे पाप क्षमा हुए। So it is like this, you consider a hospital in Gwalior. और आप इस प्रकार से एक विचार कीजिए, आप ग्वालियर में एक अस्पताल में जाते हैं। And when you are outside the hospital, you see one person walking out with a bed on his head. और आप ऐसा विचार कीजिए, कोई व्यक्ति निकल के आता है अस्पताल से, अपने सिर पर पूरे बिस्तर को रखे निकलता है। So we see Jesus Christ asking him to do something after he is forgiven. और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि ये व्यक्ति के पाप क्षमा हो गए तो ये कुछ करे। Even after 10 years or 15 years, that man will always remember the words of the Lord Jesus Christ. Take up thy bed and walk. और 10 और 15 साल के बाद भी इस व्यक्ति को याद रहेगा कि यीशु मसीह ने कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। And he did not go back in the same way that he came down. और जिस प्रकार से वो आया था उसी प्रकार से वो वापस नहीं गया। He came down like a pail of water and then went back as a man carrying his bed. और जिस प्रकार से पानी ऊपर से गिरता है उसी प्रकार से वो आया था, लेकिन वो चल के अपने घर पे गया। What impression it made on the people who were there?
और ये जो चंगा ये कार्य का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? He did not just arise out of his bed, but he had to show that he had the strength restored back to him. So he took up his bed because it lay in the way and went forth before them all. और हम देखते हैं उसको केवल चंगाई नहीं मिली, लेकिन उसको ये भी दिखाया गया लोगों को कि उसके पास ताकत भी है। So whenever you are healed of thy sins, we have the strength given from above to take our burdens and walk into the midst of the people outside and to tell them, here is my Lord who has healed me, who has helped me, and who will lead me into the future with blessings. और जब आपके पाप और आपको चंगाई मिलती है, तब ऊपर से आपको सामर्थ्य मिलती है कि आप बोझ उठा के लोगों के सामने जाएं और कहें, मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। They were all amazed. और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। They glorified God. और उन्होंने परमेश्वर की महिमा की। He said, we never saw anything like this in our lives. और उन्होंने कहा, हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा ऐसा। The work of Christ has no precedence. It is nothing who can repeat what Christ has done. और ऐसा कोई भी नहीं है जो प्रभु ने किया है उसको दोहराए। So when we see what he does in healing souls, we must own that we never saw anything like this before. और जब प्रभु यीशु मसीह जब चंगाई करते हैं तो हमें यह कहना है, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। But there were two sets of people, one who were amazed and glorified God, and other, the scribes, who were reasoning their hearts and, oh, what a bad thing happened today, as if they have seen such a bad thing, their anger grew with them. हम यहाँ पर दो प्रकार के लोगों को देख सकते हैं, जो इस कार्य को देख के बहुत खुश हैं और आश्चर्यचकित हैं। दूसरी तरफ जो शास्त्री फरीसी हैं, वो अपने मन में विचार कर रहे हैं, तो गलत हुआ है। So if you see from verse 13 to 17, we see another portion which we are going to consider very strongly today. और हम लोग आगे देखते हैं 13 से 14 वाले भाग में। And in verse 13, we see that he went forth again by the seaside, and the multitudes resorted unto him, and he taught them. और हम देखते हैं फिर वह निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। He did his work in the house. Now he is going outside to the seaside to teach them. और हम देखते हैं पहले उसने घर में प्रचार किया, अब वह झील के किनारे उपदेश दे रहे हैं। On his way, when he was passing by, here is a person sitting there and collecting taxes. He says, oh man, come, follow me. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जाते हैं और एक चुंगी वाले को देखते हैं और उनसे कहते हैं, मेरे पीछे आ जाओ। So we see that after healing, he is going to do his work, and on his way also, we see he was doing multitasking. और हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के एक कारण नहीं अनेक वो चंगाई करते हैं। चंगाई करने के बाद वह रास्ता तैयार करने के लिए भी निकल पड़ते हैं। I have seen many of our brothers and sisters, when they get out of a auto rickshaw or a taxi, they give forth a tract and get out and say, God bless you. और हम जानते हैं हमारे भाई बहन जब ऑटो से उतरते हैं, एक प्रभु यीशु मसीह का पर्चा देते हैं और कहते हैं, परमेश्वर आपको आशीष करे। And great sin and great problems before conversion are no bar to great gifts from God and great graces from God. और यहाँ पर हम देखते हैं हमें बातचीत करना चाहिए, तभी परमेश्वर का कार्य कर पाएगा। Okay, let me put it in another way. If any great sin is no bar for any gifts from God. और कोई भी ऐसे पाप नहीं है जो परमेश्वर के वरदान को रोक सके। Yes,
So you have great gifts and great graces which God will give you when, and even though it was there in your life before your conversion, God doesn't consider that, but he gives you all grace and love and mercy. और परमेश्वर का जो वरदान है और जो अनुग्रह है वो हमारे ऊपर अति प्रबल है, जो हमारे परिवर्तन से पहले होता है। So these people in verse 16, you see what happens. और हम 16 वचन में देखते हैं शास्त्री फरीसियों को क्या होता है। Please read, brother. और शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। Oh, what all complaints. और यहाँ पर हम लोग कितनी शिकायतों को देखते हैं। Here was a person who was converted, who was following the Lord Jesus Christ, Matthew, and Matthew, on the day he started following, he went home and made a great feast where he called his friends. हम यहाँ पर देखते हैं मत्ती जो चुंगी लेने वाले हैं वो भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे और अपने घर पे जाके बहुत बड़ा भोज किया। So if you turn to 1 Kings chapter 19 and verse 21, we see prophet Elisha also doing that. और हम लोग पहला राजा 19 का 21 में देख सकते हैं जो एलिया कर रहे हैं। So we see that with thankfulness to God, he quit everything and he complied to the call of Jesus Christ. और हम देखते हैं यहाँ पर वो धन्यवाद के साथ धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को और सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं। So he made this day of his connection with Christ a festival day. और यहाँ पर हम देखते हैं उसने अपने दिन को परमेश्वर के त्योहार के साथ में जोड़ा। How many of us remember our spiritual birthdays? और हम में से कितने अपने आत्मिक जन्मदिन को याद रखे हुए हैं? How many of us rejoice on that day? और हम में से कितने लोग उस दिन आनंदित हुए थे? How many of you cut cakes on your spiritual birthday and say that all of you come to my house and we are going to have a good time, and there will be brother Jagvir Singh who is going to come and give your message to you. और कितने लोग हैं जो अपने आत्मिक जन्मदिन में केक काटते हैं और लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि फलाने जो ब्रदर हैं वो आएंगे और प्रचार करेंगे। So we see Matthew did like what Zacchaeus did. और हम देखते हैं ऐसा जो मत्ती चुंगी लेने वाले ने अपने आत्मिक जन्मदिन के दिन किया। Both were in the tax department. और हम देखते हैं वो चुंगी लेने वाले डिपार्टमेंट में थे। Zacchaeus and Matthew. और जो जक्कई और मत्ती चुंगी लेने वाले। And both had a party in the house. They had a feast in the house, and they had tea party in their houses. और हम देखते हैं मत्ती और जक्कई के जीवन में जिस दिन उनका आत्मिक जन्मदिन हुआ उन्होंने अपने घर में भोज रखा और लोगों को दावत दी। So what was the problem with the Pharisees and the scribes? They would not come to hear him preach, but they were there to see what wrong he did. और हम यहाँ पर देखते हैं शास्त्री फरीसियों के मन में क्या चल रहा है। वो प्रचार नहीं कर रहे लेकिन ये देख रहे हैं क्या गलत हो रहा है। Where is he sitting? और वे कहाँ बैठे हैं? जहाँ वे बैठे हैं he is sitting with publicans and sinners. और वो देख रहे हैं यीशु मसीह लोगों के बीच में, वो भी पापियों के बीच में बैठे हैं। And when they see that, they get provoked. और वो देखते हैं जब वो देखते हैं तो अपने आप में जलन उनको पैदा हो जाती है। So they did not have the guts to go and talk to Jesus first. So they went and talked to the disciples first, saying that your master, what a master, he sits with sinners and publicans and he eats and drinks with them.
और यहाँ पर उन शास्त्री फरीसियों के पास इतना हिम्मत नहीं है वो यीशु मसीह के पास जाएं और बात करें, लेकिन वो यीशु मसीह के शिष्यों के पास जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा गुरु कैसा है, पापियों के पास जाता है, उनके बीच में बैठता है, उनके साथ खाता पीता है। So it is not something which is different in our times also. और यह हम अपने समय में भी देखते हैं, वो आज भी ऐसी प्रथा बंद नहीं हुई है। So if when somebody does a good thing which is well designed and for the good of many, it will be misrepresented and it would be turned as a reproach even for the wisest and the best of men. और हम देखते हैं आज भी हम कितने भी अच्छे हों, जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं तो लोगों के द्वारा गलत गलत बातों को बोला जाता है और उसको घृणित किया जाता है, अपमानित करते हैं। So how did Jesus Christ justify himself? We read in verse 18. Please read verse 18. और हम देखते हैं 18 वचन में किस प्रकार से यीशु मसीह वहां पर कहते हैं। 2:18 यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, सो उन्होंने आकर उससे यह कहा कि यूहन्ना के चेले और फरीसियों चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। Yeah, let's read verse 17. 17 वचन भी पढ़िए। आगे 17 वचन। 17 वचन। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वेद की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। So what did Jesus say? I came to heal the sick and to forgive the sins of mankind. I came to do that. हम यहाँ पर देखते हैं, मैं यहाँ पर लोगों को चंगा और उनके पापों को क्षमा करने के लिए आया हूँ। The sick needs a physician and the sinner needs a savior. और जो बीमार हैं उन्हें वैद्य की आवश्यकता है, जो पापी हैं उन्हें उद्धारक की आवश्यकता है। I did not come to call you people who call yourselves righteous, but I came to call sinners unto repentance. और मैं यहाँ पर धर्मियों को बुलाने नहीं, लेकिन पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। So let's read Malachi chapter 3 and verse 7. हम मलाकी 3 का 7 पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अपने पुरखाओं के दिनों में तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें। So here is the people of the times, even from the days of your fathers, you have gone away from me. और हम देखते हैं प्रभु कहते हैं, आप अपने पुरखाओं के जमाने से मेरे से दूर चले गए हो। He says, return unto me. और वो कहते हैं तुम मेरी ओर फिरो। But instead of returning, you are reasoning in your hearts, wherein shall we return? और अपने मन में व्यर्थ विचार करके कहते हो हम किसकी ओर फिरें। Of what should I repent? I am such a good scribe. I am doing good things and doing good works, and I don't need to come back to God. अरे मैं बहुत अच्छा एक शास्त्री हूँ, मैं किस बात के लिए पश्चाताप करूं, मुझे परमेश्वर की ओर फिरने की आवश्यकता नहीं है। Even today there are people like this. Please read Proverbs 26 and 12. Proverbs 26 and 12. Pardon, sir? Proverbs chapter 26 and verse 12. Let's read. नीति वचन 26 का 12 हम लोग पढ़ेंगे। यदि तू ऐसे मनुष्य को देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। So there is more hope of a fool than who is wise in his own eyes. और यहाँ पर उस मूर्ख से ज्यादा आशा है जो बुद्धिमान अपनी बुद्धि में बुद्धिमान बन रहा है। So in verses 18 to 28 we see that
Jesus, who has been questioned, is justifying not only himself, he is also justifying what his disciples did. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को वहां पर सिद्ध किया और अपने चेलों को भी सिद्ध कराया। So what do they do in verses 18 to 28? और हम देखते हैं वो क्या करते हैं 18 वचन से 28 वचन तक। So Marcus? one is they were not fasting like the disciples of John. और हम देखते हैं वो फरीसी शिकायत कर रहे हैं कि जिस प्रकार यूहन्ना के चेले उपवास रखते हैं उस प्रकार से यीशु मसीह के चेले उपवास नहीं रखते। When these fellows were fasting, the disciples were feasting. और जब ये लोग उपवास रखते हैं उस समय यीशु मसीह के चेले तो भोज करते हैं। So he is always, there are people who will always think ill and suspect the worst even of the best. और ऐसे ही कुछ लोग हैं जो जब हम लोग अच्छा खाते पीते हैं तो वो विचार करते हैं। So we see that these were easy days with him because the bridegroom was with them. और हम देखते हैं उस समय चेलों के साथ बहुत अच्छे दिन थे क्योंकि बरातियों के साथ दूल्हा था। And when there is a bridegroom and a bride, there is always a feast. और हम देखते हैं जब एक दूल्हा दुल्हन रहते हैं तो वहां पर एक बहुत बढ़िया खाना पीना रहता है। So in verse 20 we see that days will come when the bridegroom shall be taken away from thee, and then shall they fast in those days. और हम देखते हैं मरकुस 2:20 में एक दिन आएगा तब बरातियों से दूल्हा अलग किया जाएगा, तब बराती उपवास करेंगे। So this Pharisees used to fast 2 days a week. और हम देखते हैं जो शास्त्री फरीसी हैं सप्ताह में 2 दिन उपवास रखते हैं। And they saw John the Baptist, who came, was neither eating nor drinking, he was like a recluse. और हम देखते हैं यूहन्ना के चेले भी उपवास रखते हैं। And their master came to eat and drink with sinners. और हम वो क्या देखते हैं कि उसके चेले भी उपवास नहीं रखते और उनका जो गुरु है वो पापियों के साथ खाता पीता है। And we see that today, we also see that when we go out to teach and to say the gospel, there will be so many people who will be finding so many faults, saying that, see where he is going, see what he is doing. But Jesus Christ justified what he did and what his disciples did. और हम जानते हैं जब हम लोग बाहर प्रचार करने के लिए जाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे अंदर कमियां निकालते हैं जो प्रभु यीशु मसीह नहीं करते। Sometimes we become so deeply involved with the doctrine and we hold the doctrine so hard, our hands are like this. और कुछ समय हम लोग सिद्धांतों को इस प्रकार जोर से पकड़ लेते हैं। Sometimes we cannot unfold it to show love and adjustments and compromises like Lord Jesus Christ did. और कभी-कभी हम लोग सिद्धांतों की बदौलत हम लोग अपने प्रेम को भी नहीं बताते जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। We also ask because of our doctrine, how can he sit? How is he that he eateth and drinketh with publicans and sinners? और हम लोग अपने सिद्धांतों के कारण ये भी विचार करते हैं ये कैसे हो सकता है पापियों के साथ, या वहां पर कैसे बैठ सकते हैं। When we deal with young Christians who are new in the Lord, they are weak and tender. और जब हम लोग नए जो प्रभु को अपनाए हुए नौजवान हैं उनके साथ बैठते हैं वो प्रभु में बहुत मुलायम होते हैं। Sometimes we have high expectations of a young child. और कभी-कभी हम लोग एक जवान एक बच्चे से बहुत बड़ी आशा रखते हैं। We expect the child to talk like a prophet. और हम लोग कभी-कभी बच्चे से ऐसी आशा रखते हैं वो भविष्य वक्ता की तरह बोले। And our Lord Jesus Christ says that he can hear the groanings of our heart. He is not interested in your big words. Whatever is in your heart,
he knows, and he knows everything which is in your heart. He knew man very well. परमेश्वर हमारे हृदय को जानते हैं और हम वचन में पढ़ते हैं वह टूटे हुए हृदय को पसंद करता है, ना कि एक घमंड भरे हृदय को। So see verse 23 and 24. और हम लोग मरकुस 2 का 23 और 24 वचन देखेंगे। और ऐसा हुआ कि वह शब्द के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बाले तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये शब्द के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। So earlier, the Pharisees and the scribes, they tried to bring a division between Jesus and his disciples. और पहले से हम देखते हैं ये फरीसी लोग यीशु मसीह और उनके चेलों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। So there are people who will always try to sow discord. First they will go, see verse 16, first they went to him. Now you see the verse which you read, now they went to them. और अभी देखिए, पहले वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, अभी वो लोग चेलों के पास जाते हैं। So they will come and talk and try to create division among the master and the disciples. और इस प्रकार के लोग आपके बीच में आएंगे और वो लोग गुरु और शिष्य के बीच में फूट डालते हैं। It was a Sabbath day morning and they were so hungry. और हम देखते हैं वो 7वां दिन है और वो लोग भूखे भी हैं। They plucked the ears of the corn and that was the best that they could get that day. और हम देखते हैं यहाँ पर गेहूं की जो बालें हैं हरी, उनको वो लेके खाने लगते हैं। They were so intent upon the spiritual things that they forgot even their necessary food. और वो लोग इतना व्यस्त हो गए कि वो अपने एक महत्वपूर्ण खाने को भी भूल गए। So the Jews or the scribes ate good food on the Sabbath day, but the disciples were content with anything. और यहाँ पर हम देखते हैं उस दिन सब्त के दिन शास्त्री फरीसी अच्छा भोजन करते हैं, लेकिन यहाँ यीशु मसीह के चेले भूल के वो बालें तोड़ के खाने लगे। You know what was the great charge upon them by these Pharisees? और आप जानते हैं कि उनके ऊपर उनको क्या बड़ी जिम्मेदारी थी शास्त्री फरीसियों के ऊपर। So we read in verse 24 that they were saying it is not lawful to pluck the ears of corn on the Sabbath day. और हम देखते हैं फरीसी कहते हैं कि यह सब्त के दिन वह काम क्यों करते हो जो उचित नहीं है। They are comparing plucking a few ears of corns on the Sabbath day to something like a reaping of the corn. और वो क्या सोच रहे हैं कि कुछ बालों को इन्होंने तोड़ लिया, मतलब इन्होंने पूरा खेत की फसल को काट लिया। So it is to be observed here that they thought that Christ did wrong and the disciples were told that Christ did wrong things. और यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को चेलों के विषय में बताया गया कि उन्होंने गलत किया है। So today also we have false prophets who come and do all these mantras in our ears, but we should keep them away. और आज के समय में भी प्रिय भाइयों बहनों झूठे भविष्यवक्ता हैं, वो भी तंत्र मंत्र करते हैं, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। Christ is defending his followers. We see that and he's talking about their own King David, what he did in verse 26 and 27. और हम लोग 26 वचन और 27 में पढ़ते हैं, वो लोग ऐसा सोच रहे हैं हमारा राजा केवल दाऊद है। So what did he do? Please read verse 26. आइए हम 26 वचन को पढ़ें। उसने क्यों कर अबीयातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। Man David, who was a man after God's own heart, when he was hungry, he did not make
any difficulty of eating the showbread, which by the law nobody could eat but the priests and his families. और हम जानते हैं जो दाऊद राजा हैं वो परमेश्वर के मन के चुने हुए राजा हैं। वो जब भूखे थे तो उन्होंने जो भोज की जो रोटियां रहती हैं मंदिर की वो खाई, और ऐसा नियम है उनको याजक को छोड़ कोई खा नहीं सकता है। God understands the requirements, and if it is done as a case of necessity and not as a daily thing, God will allow that in his wisdom. और परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानते हैं और हमारी जरूरत की अपेक्षा वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे, इसलिए परमेश्वर जरूरतों को जानकर उसको अलाउ करते हैं। The Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. और हम जानते हैं सब्त का दिन जो है वो मनुष्यों के लिए बनाया गया था, मनुष्य साबत के दिन के लिए नहीं बनाया गया। God did not impose anything on us so that we should do it with so much of difficulty in our mind. परमेश्वर हमारे ऊपर किसी भी कठिनाई को या किसी भी ऐसे दिन को थोपते नहीं है कि हमको कठिनाई का सामना करना पड़े। He had our good in mind, that he made, that he had something good in mind when he said that you have to honor the Sabbath day. और हमें अपने जो मस्तिष्क में एक अच्छा विचार रखना चाहिए, जो एक सावत के दिन भी हमें अच्छा विचार रखना चाहिए। In Deuteronomy 5 and 14, we see that it is a time for resting the tired bodies, not only of yourself, but your manservant and maidservant may also rest. और हम लोग व्यवस्था विवरण 5:14 में पढ़ते हैं, यह आपकी शारीरिक आराम के लिए है, इसमें आपके दास और दासी भी आराम करें। So when he talks one time, he says that even if your donkey fall into a ditch, which of among you will not go and save it? और हम यहाँ पर देखते हैं वो यीशु मसीह कहते हैं शास्त्री फरीसियों को, यदि आपका गधा आपका बैल कुएं में गिर जाए तो आप में से कौन है उसे बाहर नहीं निकालेगा। So the Sabbath was made of a day of rest, and it was also a day for holy work, a day of communion, and a day of praising and worshiping and thanksgiving. और हम जानते हैं सब्त का जो दिन है वो पवित्रता के लिए, परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए बनाया गया है। God has advanced the Sabbath day by one more day ahead. On the first day of the week, on Sunday, we worship God. आज परमेश्वर ने वो सप्त के दिन को सप्ताह का पहले दिन में बदल दिया है, जिस दिन हम लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं। So we should ask, what am I better for this new change of this first day of the week? और हमें अपने आप में विचार करना चाहिए, क्या सप्ताह के पहले दिन के लिए मैं योग्य हूं और उसमें उचित हूं क्या? So the message is that even though we should do what we should do, we should not be unreasonably strict in certain things so that the young believer will run away from the presence of God because of your unreasonable strictness. और हम लोगों को जो इस दिन करना चाहिए वो वाकई में कर सकते हैं, लेकिन बिना कारण के हमें कुछ इस दिन नहीं करना चाहिए। The Son of Man is the Lord of the Sabbath. और हम जानते हैं जो परमेश्वर का मनुष्य का पुत्र है वो सब्त के दिन का स्वामी भी है। So let's read John 5 and 16. और हम पढ़ेंगे यूहन्ना 5:16। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वह ऐसे ऐसे सब्त के दिन कार्य करता था। Who was the person who gave the law? And they are questioning that very person who instituted the law. और हम लोग
जानते हैं जिसने नियम को बनाया और ये लोग उसी को नियम बता रहे हैं। Come to chapter 13, we see Christ healing a man with a withered hand. और हम देखते हैं 13 अध्याय में कि परमेश्वर एक सूखे हाथ वाले को चंगा करते हैं। And we see him going from different places, from the house to the seaside to the field, and now he is going back on the Sabbath day to speak from the synagogue. और हम देखते हैं यीशु मसीह झीलों के किनारे बोलते हैं और सब्त के दिन वो आराधनालय में आके उपदेश देते हैं। So he entered into the synagogue. So he had this opportunity to preach a sermon there. और हम देखते हैं वो जब आराधनालय में जाते हैं और उन्हें आराधनालय में बोलने के लिए अवसर दिया जाता है। It is lawful for the master to do anything on the Sabbath day. और यह नियमबद्ध है कि स्वामी उस दिन कुछ भी कर सकता है। The patient's case was very piteous. He had a withered hand. He was a disabled person and he could not do anything with his hand. एक रोगी जो हाथ के सूखा रोगी आता है वह अपने हाथों से कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके हाथ सूखे हुए हैं। We have to help those who cannot help themselves. और ऐसे लोगों को मदद की आवश्यकता है, वे खुद नहीं कर सकते। The spectators were very unkind both to the patient and to the physician. और यहाँ पर एक अलग प्रकार का हम देख सकते हैं, एक जो रोगी है और जो एक वैद्य है। They take the law in their hands and say that if Jesus Christ is going to heal on the Sabbath day, he is going to be a Sabbath breaker. और यहाँ पर जो शास्त्र के ज्ञाता हैं वो कहते हैं यदि यीशु मसीह सब्त के दिन चंगाई करने जाता है तो वो सब्त के दिन को तोड़ता है। But Jesus Christ dealt very fairly with the spectators and also to this man with the withered hand. और हम देखते हैं जो लोग यीशु मसीह के विषय में विचार कर रहे हैं, यीशु मसीह बड़ी शालीनता से इस हाथ को सूखे हुए व्यक्ति को चंगा करते हैं। So he says in verse 3, just read verse 3 of chapter 3. हम लोग मरकुस 3:3 हम लोग पढ़ेंगे। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो। Stand forth. खड़े हो Stand जाओ। forth. And we see Stand that. जी, बीच में खड़े हो जाओ। So only when you stand, you can see that person clearly. और जब वह आपके बीच में खड़ा होगा तो आप उसको स्पष्ट रीति से देख सकते हैं। And they saw his withered hand. और लोगों ने क्या देखा? उसका हाथ सूखा हुआ है। And the Lord also saw his withered hand. और प्रभु ने भी देखा कि उसका हाथ सूखा हुआ है। He had compassion, he had mercy. और यीशु मसीह ने उसके ऊपर दया की और तरस खाया। He asked, is it better to save life or to kill? और उसने कहा कि इस जीवन को खत्म कर देना उचित है कि बचाना उचित है। And he looks around them with anger because of their attitude in their hearts. और यीशु मसीह एक क्रोधित के साथ लोगों को देखते हैं। They were provoked by Jesus Christ trying to heal, and Jesus Christ was provoked by their sin. As he looked around them, they saw their hearts. और यीशु मसीह को वो चंगाई करते हुए शास्त्री फरीसी क्रोधित होते हैं और यीशु मसीह क्रोधित होते हैं उनके पापों को देखकर। He is pitying the sinner, but we have so many hard-hearted sinners and saints today who are not showing their love and compassion. वो प्रभु यीशु मसीह उस रोगी के ऊपर दया दिखाते हैं, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कठोर हृदय के वो दया करना नहीं चाहते हैं। So we must sometimes be able to think differently like the Lord Jesus. और आज के समय में प्रिय भाइयों बहनों, हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह विचार करने की आवश्यकता है। The great healing day is the Sabbath day.
और जो महान चंगाई का दिन है वो है सब्त का दिन, And the place where the healing happened is the synagogue. और जहां पर चंगाई हुई है वह है आराधनालय, And the person who healed is Jesus Christ. और जिन्होंने उसको चंगाई किया है वो है प्रभु यीशु मसीह। We were like that. Our hands were withered. We could not even stretch forth our hands. हम लोगों के हाथ भी सूखे हुए थे, हम अपने हाथों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। Christ effects the cure, and here is a person whose hand was withered. His hand is straight now. और प्रभु यीशु मसीह ने उस सूखे हाथ वाले का हाथ चंगा कर दिया और अभी वह हाथ आगे बढ़ा सकता है। The enemies of Christ dealt very barbarously with him. और यहाँ पर हम देखते हैं जो दुश्मन है, जो अपने मन में मलिनता करते हैं कि ऐसे कैसे सब्त के दिन हो सकता है। The Pharisees who pretended to be the big people in the church, and the Herodians who pretended to be the supporters of the state, both of them took counsel against him that how they may destroy him. यहाँ पर हम देखते हैं आराधनालय में शास्त्री फरीसी एक दिखावा करते थे बहुत बड़ा कि बहुत गुरु हैं, जानने वाले हैं। उन लोगों ने मिलके यीशु मसीह के विषय योजना बनाने लगे। There were many who followed him. They pressed upon him to touch him so that they may be healed of their diseases. और हम देखते हैं इसी प्रकार बहुत लोगों ने यीशु मसीह के पीछे आए और चंगाई को प्राप्त किया। They fell down before him as petitioners for his favor. और हम देखते हैं वो लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने गिर जाते हैं, उसको दंडवत करने लगते हैं। They wanted to be healed by his touching them, but by their touching him also they wanted to be healed. और हम जानते हैं वो लोग प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श से चंगा होना चाहते हैं यहाँ पर, और दूसरे लोग भी चाहते हैं। Diseases were cured, devils were conquered. और हम देखते हैं रोगों को चंगा करना मतलब शैतान के ऊपर विजय पाना है। So today we saw the initial opposition to Christ at that point of time. आज हमने प्रभु यीशु मसीह के सतावट के आरंभ को देखा है, शुरुआत को देखा है। So it started with his popularity. The people who were the scribes and Pharisees did not like him. और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो विरोध है वह प्रसिद्धता के साथ आरंभ हुआ है। So we see that the whole excuse of coming for a meeting was to see what somebody did wrong. और यहाँ पर हम देखते हैं शास्त्री फरीसियों की बैठक हो रही है कि उसने क्या गलत किया है। Even after we return from our assembly meetings, let us not think negatively. Let us think positively from this day on. प्रिय भाइयों बहनों, जब हम अपनी मीटिंग से चर्च से लौटते हैं तो हमें गलत विचार नहीं करना चाहिए, जबकि अच्छा सकारात्मक विचार करना चाहिए। Some people have a PhD in finding fault. और कुछ लोग तो गलतियों को देखने के लिए डॉक्टरेट हैं। But let us be like the Lord Jesus Christ, who had his doctorate in love, mercy, and compassion. Amen. जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जो प्यार करने में, दया करने में डॉक्टरेट हैं, उसी प्रकार हमें भी होना चाहिए। So today we'll end here. Thank you for the wonderful translation, Brother Jagveer.